उत्तर भारत का त्रिपुरा, जहां प्रकृति की लहर में संस्कृति की सुगंध घुली है। ये धरती परंपरा, विविधता और नई संभावनाओं का सुंदर संगम है। और जब सुबह की पहली किरण त्रिपुरा के पहाड़ों को सुनहरा करती है, तभी किसी गांव में एक नया सवेरा जन्म लेता है, जहां ग्रामीण महिलाएं अपने हाथों की मेहनत और सपनों के रंग से अपनी जिंदगी को नया अर्थ देती है। ये कहानी है बदलाव की, जिसने उन्हें हिम्मत दी, राह दिखाई और आत्मनिर्भर बनाया। TRLM, त्रिपुरा रूरल लाइवलीहुड मिशन, राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत वे शक्ति है जो महिलाओं को एक सूत्र में जोड़ती है, उन्हें प्रशिक्षण देती है, ऋण से सशक्त करती है और उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाती है। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई परिकल्पनाएं शुरू की हैं। त्रिपुरा रूरल लाइवलीहुड मिशन के माध्यम से आज हजारों महिलाएं स्व सहायता समूहों से जुड़ चुकी हैं। हम उन्हें प्रशिक्षण, बैंक ऋण और विपणन सहायता प्रदान कर रहे हैं ताकि वो अपनी आजीविका खुद तय कर सके। आज हमारे राज्य की लगभग हर पंचायत में स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। 30,000 से अधिक समूहों ने अपने आर्थिक परिचय बनाए हैं। ये महिलाएं अब सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, बल्कि अपने गांव की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दे रही है। हर परिवार की एक महिला सदस्य जब SHG से जुड़ती है, तो वे समूह बढ़कर विलेज ऑर्गेनाइजेशन और क्लस्टर फाउंडेशन में बदल जाता है, जहां मिलती है सीख, सहयोग और आत्मविश्वास की शक्ति। नमस्कार, আমার নাম লতিফা বেগম। আমার গ্রামের নাম তেলকাজলা গ্রাম পঞ্চায়েত। আমার গ্রুপের নাম হয়েছে নজরুল SHG। আমি এই SHGতে যুক্ত হওয়ার পর আমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণ নেওয়া, মুতিমালা, এই অন্যান্য হাতের কাজ করতাম টুকিটাকি। তখন আমার ইনকাম হয়তো মান্থলি 3 থেকে 4,000 বা 5,000 টাকা ইনকাম করতাম। তো একদিন স্যারেরা আমাদের সাথে আলোচনা করিয়া কইলো যে এই অ্যাভেলেবেল কচুরিপানা আমাদের এদিকে, তো আমরা 20 জন দিদি মিলে এই একটা NFC তৈরি করি, যে NFCর নাম স্বাগত NFC। তারপর আমরা একটা ট্রেনিং পাই 6 মাস ট্রেনিংয়ের পর আমরা বিভিন্ন হাতের কাজ তৈরি করতে পারি। তখন আমরা NFCতে তখন একটা পান্ড দিছিল TRLM থেকে 7 লাখ টাকা। তারপরে যখন আমরা আস্তে আস্তে বিজনেসটা একটু উপরের দিকে যাইতেছে, তখন আবার TRLM আমরা 15 লাখ টাকা ইনভেস্ট করছে, আমরা যাতে কিভাবে এই প্রজেক্টটারে বাড়াইতে পারি। আগে তো আমার ক্ষুদ্র একটা ব্যবসা ছিল, যে কারণে আমি এত একটা কিছু করতে পারতাম না। এখন এই NFCতে আওয়ার পরে বা এই কাজের সাথে যুক্ত হওয়ার পরে আমার মান্থলি এখন 10 থেকে 12,000 টাকা পরে, যেটা দিয়ে আমার সংসারও আমিও আমার হাজব্যান্ডকে সাপোর্ট করতে পারি। যেই কারণে আমরা TRLM प्लस त्रिपुरा सरकार के असंख्य धन्यवाद। इन्हीं समूहों से निकलती है वे महिलाएं जो आज कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण में अपनी अलग पहचान बना रही है। साल 2022-23 में 63,000 से अधिक ग्रामीण महिलाएं TRLM से जुड़ी और 120 करोड़ से अधिक के बैंक ऋण से उनके सपनों को उड़ान दी। लखपति दीदी और समृद्धि अभियान जैसी पहलों ने महिलाओं को केवल आर्थिक नहीं, सामाजिक रूप से भी सशक्त किया है। नमस्कार, আমার নাম রূপালী সরকার। আমি বিবেকানন্দ SHG গ্রুপের একজন গ্রুপ প্রেসিডেন্ট। আমার ভিউর নাম জনকল্যাণ ভিউ দক্ষিণ চরিলাম। আমি এই সেলফ হেল্প গ্রুপ করার উদ্দেশ্য, আমি নিজের পায়ে নিজে কীভাবে দাঁড়াবো, আমি নিজে স্বাবলম্বী হব। আমার আর্থিক অবস্থা আগে খুবই দুর্বল ছিল। এখন আমি এই SHG গ্রুপ করে TRLM-এর তাদের সহযোগিতায় অনেক ট্রেনিং আমি পেয়েছি। আচারের ট্রেনিং নিয়েছি, বেম্বু জুয়েলারি ট্রেনিং নিয়েছি, তারপরে সফটওয়্যার পুতুলের ট্রেনিং নিয়েছি। সবকটা ট্রেনিং করে করে আমি সব কিছু প্রোডাক্ট বানিয়ে যেখানে যেখানে সরকারি মেলা হয় ওইখানে আমাকে পাঠায়, এবং TRLM-এর সহযোগিতা আমি আজকে আমার পরিবার নিয়ে
আমি খেয়ে দিয়ে ভালো আছি। আমার আর্থিক অবস্থা আগে খুবই অচল ছিল, দুই মুঠো ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। আমাকে ব্যাংক লোন সহযোগিতা করেছে, উদ্যম আধার দিয়ে আমি 2 লাখ টাকার লোন স্যাংশন করে দিয়েছে টিআরএলএম অফিস। ওই লোন নিয়ে আমি এখন বেম্বু জুয়েলারি ব্যবসা শুরু করি। এখন আমি বেম্বু জুয়েলারি সারা ত্রিপুরাতে আমি বিক্রি করছি, ভালোই আছি। আমি সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞ। টিআরএলএম অফিস আমাকে সর্বদিকে সর্বক্ষণ আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা নানান প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे लिए खुशी की बात है कि एक तरफ मेरे सीईओ दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं भारत का, तो दूसरी तरफ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से 1 करोड़ मेरी सामान्य परिवार की माताएं बहनें लखपति दीदी बनती है। आज त्रिपुरा की 1,14,630 लखपति दीदियां गर्व के साथ अपना कारोबार चला रही हैं। आज त्रिपुरा की महिलाएं सीमाओं से आगे बढ़ चुकी हैं। वे नेतृत्व कर रही हैं, उत्पादन कर रही हैं और डिजिटल युग में अपनी जगह बना रही हैं। ये सिर्फ आजीविका ही नहीं बल्कि आत्मसम्मान और परिवर्तन की मिसाल है। मुझे गर्व है कि आज त्रिपुरा में 1,14,630 लखपति दीदियाँ जो अपने व्यवसाय और परिवार दोनों को सफलता से बढ़ा रही है। टीआरएलएम महिला को उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल कौशल और उत्पादन आधारित प्रशिक्षण देता है। हमने तृप्ति प्रोजेक्ट जैसी पहल शुरू की हैं जो विशेष रूप से हमारे पहाड़ी और दूर दराज क्षेत्रों की महिलाओं को आजीविका के नई अवसर दे रही हैं। महिलाओं के उत्पादों का बाजार से जोड़ने के लिए हमने ट्राइफेड, रूरल मार्ट और त्रिपुरा एम्पोरियम जैसे मंच तैयार किए हैं। साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उनके उत्पादों को देश भर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। महिलाओं की शिक्षा और स्वावलंबन की दिशा में भी राज्य सरकार निरंतर कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत राज्य की मेधावी छात्रों को मुफ्त स्कूटी प्रदान की जा रही है ताकि वह शिक्षा और रोजगार के राह में आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही त्रिपुरा के विविध स्थानों पर बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है जिससे दूर दराज के बेटियां सुरक्षित और सुविधाजनक परिवेश में अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। मुख्यमंत्री सुस्थ शिशु सुस्थ शैशव अभियान के तहत बच्चों, किशोरी बालिकाओं और नई माताओं को निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा दी जा रही है। ये पहल त्रिपुरा के आने वाले स्वस्थ और सक्षम भविष्य की नींव रख रही है। ये है त्रिपुरा की दीदियों की कहानी, लाखों सपनों की, आत्मनिर्भर त्रिपुरा की और हर उस दीदी की जिसने कहा मैं भी कर सकती हूँ। নমস্কার, আমার নাম মিতা চক্রবর্তী। আমার দলের নাম সমাজ কল্যাণ মহিলা দল আর আমি টিজিবি মতাই ব্রাঞ্চে ব্যাংক সখী হিসেবে কাজ করছি 2019 সাল থেকে। আমি 2019 সাল থেকে ব্যাংক সখী হিসেবে কাজ করার পর এখন অবধি প্রায় 300-র উপরে এসএসজিকে লোন করিয়েছি, যার মূল্য প্রায় 11 কোটি টাকার মতো। এই লোনগুলো করার পাশাপাশি আমি যখন দলে যাই দেখি দিদিদের মধ্যে আরও ডিমান্ড থাকে, আরও লোনের চাহিদা আছে, তখন আমি তাদেরকে এসএসজি ইন্ডিভিজুয়াল করাই। রিসেন্টলি আমি একটা মুদ্রা লোনও করিয়েছি যেটা 7.5 লক্ষ টাকা। जब राज्य की हर महिला अपने फैसले खुद ले, अपने परिवार को सशक्त करे, अपने समाज को प्रेरित करे, तो तय है कि ये राज्य, ये देश और ये दुनिया एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ रही है। सशक्तिकरण केवल योजनाओं से नहीं, अवसर से आता है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया है। अब त्रिपुरा की महिलाएं प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास हर क्षेत्र में अपनी निर्णायक भूमिका निभा रही है। आज त्रिपुरा की महिलाएं लाभार्थी नहीं बल्कि निर्माता बन चुके हैं। उन्होंने अपने आत्मविश्वास और परिश्रम से समाज में नई परिचय बनाया है। वह अब आर्थिक रूप से मजबूत है
और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अग्रणी भूमिका निभा रही है। यही असली सशक्तिकरण है। हर ग्रामीण परिवार किसी न किसी आजीविका मिशन से जुड़ा हो। हम महिला को छोटे उद्योग, बागवानी, हस्तशिल्प और पर्यटन से जोड़कर वुमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में त्रिपुरा को देश का आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना के तहत त्रिपुरा सरकार ने बेटियों को आत्मनिर्भरता की नई उड़ान दी है। राज्य भर में मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान की जा रही है ताकि वे न केवल शिक्षा बल्कि अपने सपनों की राह भी खुद तय कर सकें। राज्य के विभिन्न हिस्सों में बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। इन हॉस्टलों ने दूर दराज क्षेत्रों की बेटियों के लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए हैं, जहां वे सुरक्षित माहौल में रहकर पढ़ाई कर सके। मुख्यमंत्री सुष्ट शिशु सुष्ट शैशव अभियान के अंतर्गत बच्चों, किशोरी बालिकाओं और नई माताओं को निशुल्क टीकाकरण की सुविधा दी जा रही है। ये पहल त्रिपुरा के आने वाले भविष्य यानी हमारे बच्चों के स्वास्थ्य की मजबूत नींव रख रही है। सशक्तिकरण केवल योजनाओं से नहीं, अवसरों से आता है। इसी सोच के साथ सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। अब त्रिपुरा की महिलाएं प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास हर क्षेत्र में अपनी निर्णायक भूमिका निभा रही है। ये है नए त्रिपुरा की तस्वीर, जहां बेटी को समान अवसर, सुरक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का पूरा अधिकार मिला है। एक ऐसा त्रिपुरा जहां सशक्त नारी ही सशक्त राज्य की पहचान है। पश्चिम त्रिपुरा जिला के एक शांत गांव शानखला में छुपी है एक कहानी, साहस और दृढ़ संकल्प की। यह है पूर्णिमा देव वर्मा की प्रेरणात्मक यात्रा, जिन्होंने चुनौतियों को मौके में बदलकर अपने समाज के लिए प्रेरणा का स्तंभ बना दिया। पूर्णिमा की जिंदगी की शुरुआत एक ट्रेजेडी के साथ हुई। सिर्फ 3 महीने की उम्र में अनाथ हुई और उनके पिता ने उन्हें छोड़ दिया। उनकी बुआ ने उन्हें अत्यंत गरीबी में पाला। 5वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ने को मजबूर हुई। पूर्णिमा की शादी कम उम्र में राकेश देव वर्मा से हो गई। दोनों ने एक बेहतर जिंदगी का सपना देखा, लेकिन आर्थिक समस्याएं उनका पीछा करती रहीं। जीवन में बदलाव तब आया जब पूर्णिमा को सरकारी योजनाओं का सहारा मिला। एक टूटे मिट्टी के घर से लेकर अब वो एक पक्के घर में रहती हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बना। बिजली, पानी की पाइपलाइन और शौचालय जैसी सुविधाओं ने उनके परिवार के जीवन को सुविधा और गरिमा दी। आगे আমরা পাকা ঘরে থাকার কথা ভাবতেও পারতাম না, কিন্তু এখন সরকারি প্রকল্পের সাহায্যে একটি পাকা ঘরে আমরা নিরাপদভাবে বসবাস করছি। जिंदगी और भी सुविधाजनक बन गई जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें एलपीजी कनेक्शन मिला। अब वो सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में खाना बनाती है। उनके बच्चे जो पहले मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ते थे, अब प्रधानमंत्री उजाला योजना के तहत बेहतर लाइटिंग में पढ़ाई करते हैं। पूर्णिमा ने अपने परिवार को उठान देने के लिए नए मौकों की तलाश की। मनरेगा के तहत उन्हें एक बकरी शेल्टर मिला और उन्होंने पशुपालन शुरू किया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा और एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन की मदद से उन्होंने अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाया, कपड़े और पशु उत्पाद बेचकर। उनका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। त्रिपुरा ग्रामीण आजीविका मिशन के सहारे उन्होंने आधुनिक चप्पल बनाने की ट्रेनिंग ली। वित्तीय सहायता का उपयोग करके उन्होंने मशीन खरीदी और एक सफल व्यवसाय शुरू किया। आज वो सिर्फ अपने लिए स्थिर आय नहीं कमा रही हैं, बल्कि अपने समुदाय की अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण देकर सशक्त कर रही हैं। পূর্ণিমা আমাদেরকে দেখিয়েছে কিভাবে সরকারি সুযোগটা পেয়ে আমাদের জীবন আমরা পরিবর্তন করতে পারি। By Purnima, Dr. Nebague, Kaisa, Polukmari, Bonologue, Sinparanize, Beba, Bororo, Serena Nango, Samurina Bague, Tai Nidino, Sagbay Tau, Besana Bague.
पूर्णिमा देव बर्मा की कहानी सिर्फ एक व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है। यह दिखाती है कि जब सरकारी योजनाएं और दृढ़ संकल्प मिलते हैं तो जिंदगी और समाज दोनों को बदला जा सकता है। उन्होंने साबित किया है कि कोई भी रुकावट इतनी बड़ी नहीं होती जब साहस और मौका एक साथ मिलते हैं।